Hello class 11 students. This is your biology teacher Agrima Rawat. So we have been doing the chapter number 8, cell, the unit of life. In this we have already talked about prokaryotic cell. In that we have seen that what are the components found in the prokaryotic cell. Now it is the turn of the eukaryotic cell. So we will see to the eukaryotic cell, what is eukaryotic cell and what are the components found in the eukaryotic cell. So let us move to that. Okay, so here it is the eukaryotic cell. When we are talking about the eukaryotic cells, so in the eukaryotic cells, the first thing that has to be mentioned is that eukaryotic cell is having proper compartmentalization. It means there are specific boundaries for each and everything. Each thing is having some boundaries, means like this is a particular thing, so this is found here, this is found here, this is found here. Everything is having its own space. कहने का मतलब ये है कि जब यूकेरियोटिक सेल्स की हम बात करेंगे तो वहाँ पे हर कोई भी मशीनरी है या कोई भी ऑर्गेनल है वो एक अपने स्पेसिफिक जगह पे होगा. उसके बाहर एक बाउंड्री होगी जो उसे रिस्ट्रिक्ट करती है कि ये मेरी जगह है, इसके बाहर वाली बाहर जगह है, वो मेरी जगह नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर कंपार्टमेंटलाइजेशन आपको देखने को मिलता है साइटोप्लाज्म में, जिसका मतलब है कि आपके ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड होंगे एज वेल एज योर न्यूक्लियस इज गोइंग टू बी हैविंग न्यूक्लियर एनवेलप. न्यूक्लियस में भी न्यूक्लियर एनवेलप होगा, मेम्ब्रेन उसमें भी होगी. ओके, एंड देन eukaryotic cells are having complex locomotory and cytoskeletal structures. जो यूकेरियोटिक सेल्स हैं वहाँ पे आपको लोकोमोटरी मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए जो ऑर्गेनल्स हैं, या साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स मतलब जो सेल को एक स्केलेटल एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं. जैसे हमारी बॉडी में हमारा स्केलेटन होता है ना, हड्डियों का ढांचा होता है, वो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देता है. वैसे ही आपके सेल्स में, यूकेरियोटिक सेल्स में आपको साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स दिखने को मिलते हैं जो सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, एक शेप प्रोवाइड करते हैं. ओके, एंड previously as we have already been knowing this, that eukaryotic cells are having protistas, plants, animals and fungi. So these four groups are having eukaryotic cells, and there is only one group, that is Monera, that is having prokaryotic cells. Okay, now coming forward to it, so all the eukaryotic cells are not identical. जो eukaryotic cells होती हैं वो सब अलग अलग होती हैं. Like for an example, plant and animal cell. When we talk about the plants and animals, so both are different. As the plant stays at one place, and animal has to move from one place to another, so there has to be some difference in their cell also. जब प्लांट्स को एक ही जगह पे रुक कर रहना है और एनिमल्स को एक से दूसरी जगह वो आराम से मूव कर सकता है, तो दोनों की सेल्स में ऑब्वियसली कुछ चेंजेस होंगे, कुछ डिफरेंस तो होगा ही, क्योंकि दोनों की नीड्स अलग अलग हैं. तो क्या डिफरेंस देखने को मिलता है प्लांट और एनिमल सेल में? जो प्लांट सेल्स हैं वहाँ उसमें हमें एक्स्ट्रा जो चीज़ें एनिमल सेल से ज़्यादा जो मिलती हैं हमें चीज़ें, वो हैं सेल वॉल, प्लास्टिड्स एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. इनको हम एक्सप्लेन्ड वे में आगे चल के पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये सेल वॉल, प्लास्टिड्स एंड सेंट्रल वैक्यूल, जो कि बड़ा सेंट्रल वैक्यूल आपको देखने को मिलता है, that is only found in the plant cell, not in the animal cell. And in animal cell there is one extra thing than the plant cell, that is centrioles. So previously also we have mentioned this. Centriole is found in the animal cell, and it is having a very major role when the division of the chromosomes happen. Cell division happens in the chromosomes of the animal cells, right? So at that time centrioles plays a very important role. Okay, so this is what a brief thing is. Now let us move to the organelles. What are the things found in the eukaryotic cell?
Okay, and what are their specific things? So let us move here. There it is, plant cell and animal cell given here. Okay, we will talk about them later on. Okay, so here you can see the first thing that we are going to talk about is cell membrane. Okay, so cell membrane, it is the main thing and the first foremost thing that we are going to talk about. Why? Because when you look at a cell, you will see a cell membrane first. जब एक आप सेल देखेंगे, स्पेशली आप एनिमल सेल की जब बात करें, तो एनिमल सेल में आपको बाहर एक सेल मेम्ब्रेन ही देखने को मिलेगी. जब आप उसके अंदर जाएंगे उसके बाद आपको दूसरी चीज़ देखने को मिलेंगी. तो सेल मेम्ब्रेन पहली चीज़ पढ़ेंगे हम. प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन से पहले सेल वॉल भी मिलती है, बट क्योंकि सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही मिलती है तो हम सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करने वाले हैं. ओके, सो लेट अस सी टू दिस. So when we talk about the cell membrane, so the cell membrane, or we call it as plasma membrane, this has been studied only after the discovery, or you can say invention of the electron microscope. जो स्टार्टिंग में आपके सिंपल माइक्रोस्कोप्स जो बने थे, ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप्स हम जिन्हें कहते थे, जिससे सेल ढूंढी गई, बाद में न्यूक्लियस वगैरह सर्च आउट करे गए. बट जो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर्स वगैरह अगर आपको पता करना है, आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आपको पता चल गई कि एक बाहर मेम्ब्रेन है, बट उसका स्ट्रक्चर क्या है उसमें और जूम इन करना है, हमें और ज़्यादा उसको बारीकी से देखना है. तो उसके लिए लाइट माइक्रोस्कोप एनफ नहीं थे. तो तब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब बने, उसके बाद आप इनके स्ट्रक्चर्स, मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर आप पता लगा पाए, जो कि आपने पता लगाया 1950 में. ठीक है, तो मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स वगैरह का पता चला 1950 अराउंड में. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते क्या हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऐसे माइक्रोस्कोप्स हैं जिनमें लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन्स की बीम्स को डाला जाता है और उससे इमेजेस वगैरह देखी जाती है, और बहुत अच्छी इमेजेस मिलती हैं इनमें. और साथ साथ में जब स्ट्रक्चर्स देखे जा रहे थे तो केमिकल स्टडी भी की जा रही थी कि किस किस चीज़ से मिलकर ये स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ये सब देखा जा रहा था. और स्पेशली ये देखा जा रहा था ह्यूमन ब्लड, रेड ब्लड सेल्स में. ठीक है, और इसी के बाद पता चला प्रॉपर स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. तो जब सेल मेम्ब्रेन की स्टडी की गई तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर्स देखेंगे. ठीक है, मैं आपको सीधा स्ट्रक्चर से ही समझाती हूँ. तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर डायग्राम दिख रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. ठीक है, सो दिस इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर है. अब होता कैसे है, इसमें दो लिपिड की बाइलेयर्स आपको देखने को मिलेंगी. यहाँ पे एक लिपिड की एक लेयर ये है, एक ये है. ठीक है, सो लिपिड्स आपके यहाँ पे दो लेयर्स में प्रेजेंट है. किस तरह से, जैसे मैं आपको एक रफली बना के दिखा देती हूँ. एक लेयर ये है जिस तरीके से, और उसी के नीचे एक और लेयर है जो उल्टी लगी हुई है. ठीक है, इस तरीके से ये लिपिड्स लगे हुए हैं और ये दो लेयर में है, दो लेयर्स हैं इसकी, तो इसलिए इसे लिपिड बाइलेयर कहा जाता है. ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट. जो लिपिड्स हैं, ये एक लिपिड है. मैं आपको इसे लिपिड का स्ट्रक्चर बताती हूँ. ये एक लिपिड है. ठीक है, जो लिपिड है आपका, इसके दो पार्ट्स होते हैं. जो बाहर की तरफ वाला आपका ये वाला पार्ट है लिपिड का, इसे बोलते हैं पोलर हेड. पोलर हेड. ठीक है, और ये वाला पार्ट होता है नॉन पोलर हेड, नॉन पोलर टेल, सॉरी, नॉन पोलर टेल. ये इसकी पूंछ है, एक तरह से पूंछ जैसी दिखाई दे रही है ना, ये सर जैसे दिखाई दे रहा है, उसे हेड बोल रहे हैं.
तो अब ये पोलर नॉन पोलर क्या होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। पोलर वो चीज़ें होती हैं जिनमें आपका जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, एक साइड पे पॉजिटिव और एक साइड पे नेगेटिव आपको देखने को मिलता है, मतलब मिक्सचर नहीं है प्रॉपर चार्जेस का, जो कैंसिल आउट नहीं हुए हैं चार्जेस एक तरह से। नॉन पोलर जो एंड है वो नॉन पोलर क्यों है, क्योंकि वहाँ पे चार्जेस तो हैं ऑब्वियसली, बट वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है, डिटेल में पढ़ना हो तो आप अपनी केमिस्ट्री में इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। सो पोलर एंड नॉन पोलर, पोलर एंड जो होता है वो होता है आपका हाइड्रोफिलिक। ठीक है, पोलर एंड कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। आपने शायद ये टर्म्स पढ़ रखे हों, हाइड्रोफिलिक। और नॉन पोलर एंड होता है आपका हाइड्रोफोबिक। अब आई थिंक आपको हाइड्रोफिलिक से शायद पता ना चला, बट हाइड्रोफोबिक से तो आपको क्लियर हो ही गया होगा शायद। हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब होता है, जो हाइड्रो का मतलब वाटर, फोबिक का मतलब डरना। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होगा, पानी से डरने वाला या पानी से दूर भागने वाला। तो ये जो टेल पार्ट है, दिस पार्ट, दिस इज हाइड्रोफोबिक, मतलब ये पानी से दूर भागता है। ठीक है, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है दैट इज वाटर लविंग। ठीक है, ये वाटर लवर होता है, मतलब पानी से प्यार है एक तरह से, आराम से अट्रैक्ट हो जाता है, उससे टच में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे। ठीक है, इंसानों में भी ये चीज़ होती है, कोई किसी को पानी से डर लगता है, कुछ एनिमल्स में ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपके लिपिड्स के दो पार्ट्स हैं। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अपना अदा करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो नॉन पोलर आपका एंड है ये अंदर की तरफ है। ठीक है, और ऊपर की तरफ आपका पोलर हेड है। तो आपको दिख रहा है पोलर हेड ऊपर आपके बाहर के इन्वायरमेंट, ये जो बाहर का इन्वायरमेंट है इससे टच में आ रखे हैं। ये पोलर हेड आपको गोल गोल दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, ये ब्लू ब्लू, तो ये आपके जो हैं बाहर के इन्वायरमेंट से टच में है। ये हाइड्रोफोबिक हैं, सॉरी फिलिक हैं, तो आराम से पानी अगर टच में भी आता है तो नॉट अ प्रॉब्लम फॉर देम। बट जो ये टेल है वो अंदर की तरफ है, प्रोटेक्टेड है, पानी के टच में नहीं आएगी, क्योंकि ऊपर एक लेयर है आपकी हेड की, तो वो अंदर नहीं आने देगी ऐसे। ठीक है, तो ये आराम से प्रोटेक्टेड रहते हैं। अब ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। ज़्यादातर जो लिपिड्स होते हैं ये फॉस्फोग्लिसराइड्स होती हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। लिपिड कौन सी वाली लिपिड ज़्यादातर मिलती है आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, फॉस्फोग्लिसराइड। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, एक तो लिपिड से बनी हुई है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अलावा भी कुछ आपके और भी चीज़ें हैं यहाँ पे। वन थिंग इज़ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स ऑल्सो। तो प्रोटीन कहाँ है, ये दिख रहा है आपको, दिस इज़ अ प्रोटीन, ये एक प्रोटीन है। ये आपको ऑरेंज स्ट्रक्चर्स गोल गोल से आपको जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये गोल वाला भी प्रोटीन है, ये ऑरेंज वाले सारे प्रोटीन हैं। तो प्रोटीन भी यहाँ पे बहुत आपका इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। अभी इनके रोल्स के बारे में पढ़ेंगे हम। दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, एक तो होता है इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स और एक होता है आपका जो सरफेस पे आपको मिलता है। ठीक है, उसे बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। सरफेस में आपको मिलता है मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर होगा, अंदर नहीं घुसा हुआ होगा। इंटीग्रल प्रोटीन्स का मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर घुस रखा है, पार्शियली या टोटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है। ठीक है, ये पार्शियली है, मतलब आधा थोड़ा बहुत सर इसका बाहर दिखाई दे रहा है हमें, है ना। कुछ होते हैं सरफेस में रहते हैं, जो जो ऊपर की साइड आपको देखने को मिल जाएंगे, जो आपके सरफेस पे ही रहेंगे। ठीक है, अंदर की साइड नहीं घुसे हुए होंगे। ठीक है, तो दो तरह के आपको प्रोटीन्स देखने को मिल जाते हैं, एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन्स एंड सेकेंड इज द पेरिफेरल प्रोटीन्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये आपको ये जो चेन्स दिखाई दे रही है छोटी छोटी, येलो कलर की ये चेन दिखाई दे रही है, ये ग्रीन कलर की चेन दिखाई दे रही है, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, फर्स्ट इज़ लिपिड, सेकेंड इज़ प्रोटीन, थर्ड इज़ कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज़्यादा अमाउंट में आपको ज़्यादातर
लिपिड्स या फिर कार्बोहाइड्रेट में से एक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए ये स्ट्रक्चर तो आपने देख लिया, तो एक थोड़ा सा कंटेंट भी हम पढ़ लेते हैं ताकि हमें सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएं। ओके, सो लेट अस मूव टू दैट। ठीक है, तो ज़रा इसे देखते हैं। So they have told us these studies show that the cell membrane is composed of lipids that are arranged in bilayer। दिखा दिया मैंने आपको, bilayer में प्रेजेंट होती है। एंड लिपिड्स जो हैं इस तरह से अरेंज होते हैं कि आपके पोलर हेड्स बाहर की तरफ आते हैं, आउटर साइड पे आते हैं, और जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो अंदर की तरफ होती है। ये नॉन पोलर भी है। ठीक है, इससे आपका क्या इंश्योर होता है, क्या पक्का हो जाता है कि नॉन पोलर टेल जो है, जो कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वगैरह से बनी हुई है, वो प्रोटेक्टेड रहे एक्वस इन्वायरमेंट से, जो बाहर का एक्वस जो आपका लिक्विडी इन्वायरमेंट है उससे बची रहे। ठीक है, और जो मेनली लिपिड के कंपोनेंट्स होते हैं वो फॉस्फोग्लिसराइड से आपके बने हुए होते हैं। देन बाद में और स्टडीज़ हुई और ज़्यादा पता चला कि सेल मेम्ब्रेन में आपके प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। लिपिड्स तो पहले पता चल चुके थे, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बारे में बाद में पता चला। और ये देखने को मिला कि हर सेल में, अलग अलग सेल में अलग अलग प्रोटीन और लिपिड्स का रेशो हो सकता है। ऐसा नहीं कि हर सेल जो होगी उसमें आपको इक्वल अमाउंट ऑफ लिपिड और प्रोटीन का रेशो आपको देखने को मिलेगा, नहीं, सब में अलग अलग देखने को मिलता है। अगर हम बात करें ह्यूमंस बीइंग में, इरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं उन्हें। तो उसमें उसकी मेम्ब्रेन में 52% प्रोटीन और 40% लिपिड्स आपको देखने को मिले। मतलब बची कची जो अमाउंट थी वो आपकी किसकी है, कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है, तो रेशो अलग अलग हो सकता है हर सेल में। Depending on the ease of the extraction, membrane proteins can be classified as integral और peripheral। तो दो तरह के आपके मैंने आपको बता दिए प्रोटीन्स होते हैं, एक तो होता है इंटीग्रल और एक होता है पेरिफेरल। पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। पेरिफेरल प्रोटीन पेरीफेरी मतलब जो ऊपर का सरफेस है उसी में प्रेजेंट होते हैं, और जो इंटीग्रल का मतलब ये अंदर घुसे हुए, वो पार्शली या टोटली बरिड होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर। जैसे आपने देख भी लिया पिक्चर में कि वो अंदर घुसे हुए थे आपके प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे कि इनके फंक्शंस क्या क्या हैं, ये कर क्या रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं इसमें। जब ये सब स्ट्रक्चर्स के बारे में पता चलाया जा रहा था, तो अभी तो सिर्फ आपको कंपोनेंट्स पता चले, अभी तक आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर किसी ने नहीं बताया कि प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या है सेल मेम्ब्रेन का, किस तरह से फंक्शन करता है। तो वहाँ पे आए दो साइंटिस्ट जिन्होंने प्रॉपर तरीके से एक सही मॉडल दिया सेल मेम्ब्रेन का। दो साइंटिस्ट वर सिंगर एंड निकोल्सन। ठीक है, 1972 में इन्होंने काम किया। तो आपको स्ट्रक्चर के बारे में पता चलना स्टार्ट हो गया था 1950 में, और 1972 तक आते आते ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें पता चल चुकी थी। तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया सिंगर और निकोल्सन ने, और उन्होंने अपने इस सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को नाम दिया फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब उन्होंने ऐसा नाम क्यों दिया, क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है वो एक, ना ही वो पूरी तरह से सॉलिड है, ना ही वो पूरी तरह से लिक्विड ही है, वो सेमी सॉलिड स्टेट में है, या सेमी लिक्विड आप स्टेट कह सकते हो। या यहाँ पे एक और टर्म यूज़ किया गया क्वासी फ्लूइड, मतलब पार्शली फ्लूइड और पार्शली सॉलिड, जैसे कि एक जेली होती है। ठीक है, ना ही वो पूरी तरह से सॉलिड है, ना ही वो पूरी तरह से लिक्विड है। कुछ इसी तरह की आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। ठीक है, जो इसमें लिपिड्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इस तरह का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। जो ये क्वासी फ्लूइड या फिर पार्शली लिक्विडी जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, वो किसकी वजह से, लिपिड्स की वजह से।
लिपिड्स इसको एक तरह से ऐसा कुछ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। और इसी की वजह से जो प्रोटीन्स हैं लिपिड्स में, लिपिड्स का जो ये फ्लूइड ही सा पानी जैसा एक तरह से बिहेवियर है, उसकी वजह से प्रोटीन्स इसमें घूम सकते हैं कहीं पे भी। ठीक है, लिपिड्स को साइड साइड हटाएंगे और आगे की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि लिपिड्स तो कहीं पे भी जगह ले लेंगे पीछे की तरफ। ठीक है, तो ये आपका जो एबिलिटी है मेम्ब्रेन की, उसे हम कह सकते हैं फ्लूइडिटी। ठीक है, जो तैर रही है एक तरह से। ठीक है, फ्लोट कर सकती है। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर मैं आपको इमेजिन करना है आपको, तो आप कुछ इस तरह से समझो, जैसे बैलून लिया आपने, ठीक है, उसको फुला रहे हैं। ठीक है, आपने फुला दिया बैलून के, उसके बाद उसके ऊपर दबाओ भी उसे, तो वो अपनी शेप चेंज कर लेता है, बट वापस अपनी शेप में भी आ जाता है, अलग अलग शेप ले सकता है ना। बैलून के जो आपका बाहर का रबर है, वैसे ही कुछ आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कोई भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स दे सकती है। ठीक है, अब जो ये फ्लूइड नेचर है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो ये फ्लूइड नेचर है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? एक तो सेल ग्रोथ के लिए, सेल बढ़ जाए आराम से। अगर एक बहुत ही हार्ड लेयर अगर सेल के बाहर होती, तो सेल क्या ग्रो कर पाती? नहीं, क्योंकि उसके बाहर तो एक आपने सॉलिड लेयर बना दी ना, एक बाहर कवरिंग लगा दी, आपने उसको बंद कर दिया है। अब वो कहाँ से बढ़ेगी? अब ऊपर थोड़ी, इसके ऊपर फाड़ के थोड़ी चली जाएगी, तोड़ के जाना पड़ेगा नहीं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक है, तो जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे बैलून को फुलाओ फुलाओ फुलाओ, फुलाते रहो। अब एक कोई आप कोई प्लास्टिक ले लेते, प्लास्टिक को फूंक मारते, तो वो क्या फूलती नहीं? फूलती ना। बट आपने बैलून में रबर है, तो रबर इलास्टिक है, तो वो आराम से फूल जाता है। वैसे ही अगर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी सॉलिड होती, तो वो फैलती नहीं, तो सेल की ग्रोथ भी नहीं हो पाती। बट क्योंकि वो फ्लूइड है नेचर में, तो आराम से सेल की ग्रोथ हो जाएगी। सेल, दो सेल्स के बीच में जंक्शन अगर रास्ता बनाना है, तो वो भी आराम से बन जाएगा, क्योंकि हमारी जो लिपिड लेयर है वो तो बड़ी ही फ्लेक्सिबल है। सिक्रीशन भी हो जाएगा, क्योंकि उससे कोई भी चीज़ बाहर भी जा सकती है आराम से, क्योंकि उसका ऐसा नेचर है। एंडोसाइटोसिस मतलब जब सेल अपने अंदर कोई चीज़ लेती है, इनगल्फ करती है, जैसे अमीबा करता है, खाना लेता है, उसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, ये भी किस वजह से हो पाता है? अमीबा का तो आपने पढ़ ही रखा है ना, अमीबा अपना खाना ले लेता है सीडोपोडिया की हेल्प से, तो वो भी तो बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल थी, इसी वजह से तो ले पाया, नहीं तो नहीं ले पाता। सेल का डिवीजन, एक सेल दो में डिवाइड हो जाती है, तो ये कैसे हो पा रहा है? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, फ्लूइड है नेचर में। ठीक है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें कैसे हो पा रही है? क्योंकि फ्लूइड है नेचर हमारी मेम्ब्रेन का। ठीक है, ओके। अब हमने इतनी सारी चीज़ें बात तो कर ली कि यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, उसके फंक्शंस हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज दैट it is having a selectively permeable thing in it. या मैं आपको बोलूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। ये तो हम प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कुछ चीज़ों को ही अंदर और बाहर जाने में आपको अलाउ करती है। ऐसे ही कोई भी चीज़ अंदर और बाहर नहीं जा सकती। बट ये जो अंदर बाहर मूवमेंट हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो किस तरीके से हो रहा है? क्या क्या तरीके हैं जिससे कोई भी चीज़ सेल के अंदर आ सकती है और बाहर जा सकती है? ठीक है, उसके लिए कुछ प्रोसेसेस हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। फर्स्ट थिंग, कुछ चीज़ें इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, जैसे मान लिया ये आपकी एक सेल है, ठीक है, यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। अब कोई चीज़ है, उसको बाहर से अंदर की तरफ मूव करना है, और वो बिना किसी एनर्जी रिक्वायरमेंट के, कोई उसे एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मूव करने के लिए, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को पैसिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, कुछ चीज़ें बिना एनर्जी के
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आ सकती हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जा सकती हैं। और कुछ चीज़ों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर आते वक्त एनर्जी का यूज़ करना पड़ता है, और बाहर जाते वक्त भी एनर्जी का यूज़ करना पड़ता है कुछ चीज़ों को। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं एक, चलिए आपका एक किसी कोई आपकी कोई आपका मेला लग रखा है। ठीक है, एक मेला लग रखा है, फेयर है। ठीक है, मेले में आपको अंदर जाने के लिए टिकट्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। और अगर जो जैसे लोग वीआईपीज़ होते हैं, कुछ लोग वीआईपीज़ भी होते हैं ना, तो वीआईपीज़ को टिकट के बिना एंट्री दे देंगे। ठीक है, बट कुछ लोगों को जैसे आम जनता है, उनको तो क्या करना पड़ेगा, टिकट लेके अंदर जाना पड़ेगा ना, उनको पैसे देने पड़ेंगे, टिकट मिलेगी तभी अंदर जा पाएंगे। बट जो वीआईपी लोग हैं उनको बिना टिकट के भी अंदर घुसा देंगे। ठीक है, तो वहाँ यहाँ पे भी यही कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर जाना है सेल के, तो कुछ कुछ तो बिना किसी कोई चीज़ एक्सपेंस करे, कोई किसी चीज़ का अपना यहाँ पे दिए अंदर बाहर कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, और कुछ को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो जो जब मॉलिक्यूल्स को एनर्जी के बिना भी अंदर बाहर कर सकते हैं, ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और जब ट्रांसपोर्ट करते वक्त एनर्जी एक्सपेंस हो, एनर्जी मतलब एटीपी, इतना तो पता ही है हमें कि हमारी जो सेल्स हैं वो एनर्जी किस फॉर्म में यूज़ करती हैं, एटीपी। तो एटीपी देनी पड़े या लूज़ हो इनकी, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब मैं इसको और इलेबोरेट करके बताऊंगी, बस पहले इतना समझो पैसिव और एक्टिव में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब पैसिव वाला कैसे होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस इन विच समथिंग like water can cross the membrane from a higher to lower concentration। मान लिया कि सेल के बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर की तरफ कम है, तो वाटर जो है अंदर बाहर से अंदर जाते वक्त जाएगा कैसे, क्योंकि बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, तो इसलिए मूवमेंट हो जाएगा आराम से। ठीक है, और बिना किसी एनर्जी के हो जाएगा। तो ऐसी चीज़, ऐसे प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक है, तो जो आपका यही डिफ्यूजन भी है एक तरह से, बट वाटर का अगर मूवमेंट हो रहा है तो उसे प्रॉपरली ऑस्मोसिस कहते हैं। अगर कोई भी चीज़ का हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है तो उसे डिफ्यूजन, सिंपली डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो अगर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस करना हो, एक तो डिफरेंस ये होता है कि डिफ्यूजन में हम किसी भी चीज़ के मूवमेंट को हायर टू लोअर कंसंट्रेशन डिफ्यूजन कहते हैं, और ऑस्मोसिस स्पेसिफिकली हम वाटर के लिए यूज़ करते हैं। एंड वन मोर थिंग, ऑस्मोसिस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्लूडेड होती है, कोई सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे ये वाला ऑस्मोसिस जो होता है वो आपका बिना किसी एनर्जी एक्सपेंस के हो जाता है। ठीक है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आएगा ये। अब कुछ जो आपके चीज़ें होती हैं वो होती हैं आपकी ऐसी जिनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो किसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, अब ये आपकी एक सेल है, इसमें आपके लिपिड्स लगे हुए। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मैं सिंपली ऐसे ही बना रही हूँ रफली। ठीक है, तो ऊपर की तरफ पोलर हेड है और नीचे की तरफ नॉन पोलर, इधर भी आपका पोलर और नॉन पोलर हेड ऐसे लग रखे हैं। तो अब किन चीज़ों को एनर्जी देकर अंदर जाना पड़ता है, यहाँ पे प्रोटीन्स भी लगे हुए हैं। अब प्रोटीन्स में ना बीच में ऐसे टनल जैसी बनी होती है, जैसे सुरंग होती है ना, उनके अंदर से जाते हैं। आपने कभी देखा हो पहाड़ों में बनती है, जैसे अभी एक नई बनी है टनल जो आपकी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखी गई है। ठीक है, तो उनके थ्रू जाना, वैसे ये प्रोटीन भी ऐसी कुछ काम करते हैं। तो कुछ आपके
पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इन लिपिड से पास नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि लिपिड जो होती हैं वो नॉन पोलर, बीच में नॉन पोलर आपका हेड है ना, तो लिपिड्स एक तरह से नॉन पोलर हैं। तो जो भी पोलर चीज़ें होंगी वो डायरेक्टली इन लिपिड्स के थ्रू ऐसे करके अंदर नहीं जा पाती। तो कैसे जाएंगी? प्रोटीन से जाएंगी। बट प्रोटीन से जाने के लिए चाहिए देनी पड़ती है एनर्जी, ठीक है। क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो ये पोलर चीज़ें होंगी, ध्यान ध्यान रखना, ये आपके लिपिड्स क्या है? नॉन पोलर हैं, ठीक है। मतलब इनमें जो आपके चार्जेस हैं वो पूरी तरह से फैल रखे हैं, और पोलर में तो चार्ज है, तो ये अपने थ्रू लिपिड्स जाने नहीं देंगे इस पोलर चीज़ को। तो पोलर चीज़ एक तरह से इस प्रोटीन का रास्ता लेगा, प्रोटीन से के थ्रू जाएगा ये पोलर जो भी चीज़ होगी, तो इस टनल से होते हुए अंदर की तरफ चला जाएगा ये एनर्जी एक्सपेंस करके, ठीक है। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताती हूँ आपको कि वाटर भी पोलर होता है। वैसे वाटर भी पोलर होता है, पोलर मॉलिक्यूल है, बट वो एक बहुत ही एक कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स में से है जो कि बिना किसी एनर्जी एक्सपेंस के नॉर्मली लिपिड से गुजर जाता है, ठीक है। बहुत छोटा होता है तो आराम से लिपिड से होते हुए निकल जाता है, और इसमें चार्ज भी एज सच बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो इसलिए ये आराम से बाय द लिपिड लेयर डिफ्यूजन के थ्रू पास थ्रू हो जाता है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द पोलर थिंग्स हैज़ टू गो थ्रू द प्रोटीन, प्रोटीन से ही पास करना पड़ेगा उन्हें अंदर जाने के लिए, ठीक है। तो इस वाले तरीक़े को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पढ़ भी लेते हैं। As the polar molecule cannot pass through the non-polar lipid bilayer, they require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane. तो क्योंकि लिपिड से नहीं जा सकते तो किसके थ्रू जाएंगे? प्रोटीन। तो प्रोटीन को एक तरह से ब्रिज मान लो। अब मान लो कि पोलर चीज़ को तैरना नहीं आता, तो ये जो लिपिड्स हैं वो एक तरह से नदी है, तो पोलर ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं इन्हें तैरना नहीं आता, तो नदी से होके नहीं जा सकते, तो इसलिए वो ब्रिज वाला रास्ता लेते हैं, ब्रिज पे जाते हैं, और ब्रिज उन्हें क्रॉस करवा देता है और आराम से वो पहुंच जाते हैं। बट उसके लिए ब्रिज को क्रॉस करने के लिए, जैसे टोल प्लाजा होते हैं ना, रास्ते में कुछ कर देना पड़ता है, कुछ चीज़ पैसे देने पड़ते हैं, तब वो क्रॉस करने देते हैं। वैसे यहाँ पे भी है, प्रोटीन से भी क्रॉस करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। अ फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसनट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हायर टू लोअर टू हायर कंसनट्रेशन। कुछ चीज़ें तो लोअर से हायर कंसनट्रेशन पे भी जाती हैं, ठीक है, तो उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। उनको ऑब्वियसली जब अंदर जाएंगी वो, और जबकि अंदर हायर कंसनट्रेशन है, ठीक है, तभी भी वो अंदर जा रही हैं, तो तब आपको एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आपका ऐसा ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एटीपी को यूटिलाइज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका सोडियम और पोटेशियम पंप एक एग्जांपल है, मतलब पोटेशियम और आपका सोडियम जो होता है उसको अंदर बाहर करते वक्त, ठीक है, आपका एनर्जी का लॉस होता है, एनर्जी देनी पड़ती है, एटीपी यूटिलाइज़ करनी पड़ती है, तभी वो अंदर और बाहर जा पाती हैं, ठीक है। तो ये दो तरह के ऑस्मोसिस आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट हैं आपके, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी एक्सपेंस होगा, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, क्लियर। तो इस तरीके से आपके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके थ्रू कोई भी चीज़ अंदर बाहर जा पाती है, और इसीलिए इसको सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक यू।